Hello dear TYBSC, welcome to the another video lecture of the Genetics and Molecular Biology second. As you all know, I am taking your first chapter of this subject, that is transformation, and we are halfway of it. We have already completed the major part of this chapter, which was the transformation discovery, the transformation procedure, competence, and even I have told you, or I have made you to study the transformation in the gram positive bacteria. Okay, the only point that is been left, I would say important point that is left in this chapter is the transformation in the gram negative bacteria. Okay, so when we studied about the transformation in the gram positive bacteria, we already got enough idea that how the exact procedure about the transformation is. Okay, there is no major difference between the transformation procedure in the gram positive bacteria and the gram negative bacteria. They are quite similar to each other. Just a small difference is the proteins names that are being used in this type of the transformation of gram negative. Okay, the proteins that were being used in the gram positive bacteria have a similarity. Okay, the proteins don't differ in any structure or function. Okay, we can just compare them and understood that they are quite similar in their function. Just the thing is that their names are different and some additional proteins are being used in the case of the gram negative bacteria. See, what the major thing is that now ki gram positive bacteria and the gram negative bacteria, they differ between them, like in the case of the structure. Okay, we all know that thing. In the case of the gram negative bacteria, they are been having the extra layer around them. Okay, extra protective layer, or we can say outer membrane is present in them. Okay, in the case of the gram positive kind of bacteria, they don't have such kind of layer on them. Okay, so only this extra protein which is present is for the outer membrane in the case of the ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक प्रोसीजर पता है तो आप दोनों प्रोसेसेस को एज इन रिमेंबर कर सकते हो. थिंग इज़ दैट कि आपको याद रखना है कि ग्राम पॉजिटिव में कौन से प्रोटीन यूज़ होते हैं और ग्राम निगेटिव में कौन से प्रोटीन्स यूज़ होते हैं. ठीक है, नाम इतने कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है टू रिमेंबर. बस 2-3 प्रोटीन्स है जो यहाँ पे भी यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी यूज़ होते हैं. फंक्शन दोनों के सेम है, बस आपको उनका लोकेशन एंड उनका नाम याद रखना है. ठीक है, अब जैसे हमने ग्राम पॉजिटिव का लास्ट टाइम देखा था, वहाँ पे कुछ प्रोटीन्स थे लाइक कॉम ई सी थे, कॉम ई ए थी एंड कॉम सी. ओके, अब इनका बेसिकली काम क्या है कि डीएनए को, पहली चीज़ तो ये, एक बार डीएनए अटैच हो गया उसके बाद उसको अंदर लेना है. ठीक है, अंदर लेके उसका एक स्ट्रैंड डिग्रेड कर देना है. ठीक है, और डिग्रेड करने के बाद उसका एक ही स्ट्रैंड अंदर लेना है. ठीक है, उसके बाद उस एक स्ट्रैंड को जो है डीएनए में, जो बैक्टीरिया का जो रेसिपिएंट का डीएनए, उसमें इनकॉर्पोरेट करना है. अब इनकॉर्पोरेट ऐसा करना है कि एक स्ट्रैंड जो है रेसिपिएंट का, उसको डिग्रेड करके ये जो दूसरा बाहर से आया हुआ स्ट्रैंड है उसको उसमें ऑक्यूपाई हो जाना है. ठीक है, और एक हेटेरोलॉगस टाइप ऑफ दी वी कैन से डीएनए इज़ फॉर्म्ड इन द रेसिपिएंट. और यही रेसिपिएंट जब आगे जाके रेप्लिकेट होगा, उसमें होगा क्या कि वहाँ पे, आई एम टेलिंग यू डायग्रामेटिकली. ओके, सो हियर व्हेन दिस रेसिपिएंट सेल, जिसमें अब क्या है, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स है या फिर एक डीएनए जिसमें दो स्ट्रैंड है, दैट इज़ दी वन फॉर्म द रेसिपिएंट एंड वन फॉर्म द डोनर. ठीक है, इसका खुद का भी एक है और एक बाहर से आया हुआ स्ट्रैंड है. ठीक है, ऐसा जब रेप्लिकेट होगा तो 2 टाइप के यू कैन से बैक्टीरिया फॉर्म होंगे, जिसमें एक एकदम डिट्टो रेसिपिएंट जैसा होगा, जो जिसमें एक ओरिजिनल स्ट्रैंड होगा और एक बाहर से आया हुआ ट्रांसफॉर्म स्ट्रैंड. ठीक है, और दूसरा जो होगा उसमें दोनों रेसिपिएंट के जो पहले जैसे स्ट्रैंड थे वो वाले होंगे. ठीक है, तो इसका मतलब हाफ प्रोजेनी क्या होती है इसमें, हाफ प्रोजेनी विल बी द
सेम लाइक द ओरिजिनल, ठीक है, उसमें कुछ डीएनए वगैरह ट्रांसफॉर्म जो हुआ है वो नहीं आएगा मटेरियल। और दूसरा जो होगा वो पूरा डिट्टो कॉपी होगा जो रेसिपिएंट अभी बना है, जिसने खुद का स्टैंड के साथ साथ जो बाहर का स्टैंड लिया हुआ है, ऐसा एक सेल फॉर्म होगा, ठीक है। एक नॉलेज की बात है ये। देन सेकंड चीज़ ये यहाँ पे आपको याद रखनी है, ग्राम निगेटिव। अब ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसीजर एज आई टोल्ड यू इज़ अ वेरी सिमिलर इन बोथ द केसेस। तो इसका मतलब आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा वी कैन से एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों में क्या है डिफरेंस वगैरह। डिफरेंस इतना कुछ नहीं है, सेम प्रोसीजर है बेसिक। डीएनए अटैच होगा, अंदर आएगा, एक स्ट्रैंड डिग्रेड होगा, दूसरा स्ट्रैंड फिर से अंदर आएगा, अंदर आने के बाद वो उसके डीएनए में इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें सेम है इन द बोथ केसेस, जस्ट द प्रोटीन्स विच आर बीन यूज्ड आर क्वाइट डिफरेंट, ओके। नाउ द थिंग इज़ कि उनका फंक्शन भी सेम है, तो आपको ज़्यादा नॉलेज डालने की ज़रूरत नहीं कि क्या करते आखिर ये प्रोटीन। इनका काम तो यही है कि डीएनए को अंदर लेना है, एनर्जी वगैरह की प्रोवाइडेंस अच्छे से करनी है, उसके साथ साथ डीएनए को प्रोटेक्ट भी करना है, एक स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करना है, ओके, नॉट बोथ द स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड को प्रोटेक्ट करके उसको अच्छे से उसकी जगह पे पहुंचाना है। तो ये सब काम बेसिकली इन प्रोटीन्स का है, ठीक है। प्रोटीन्स के नाम अलग है बट फंक्शन सेम है। नाउ यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्राम निगेटिव काइंड ऑफ द बैक्टीरिया, ओके, दे हैव द फंक्शन लाइक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है जनरली वो भी हम देखेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए पहली चीज़ डीएनए बाइंड होगा, ठीक है, एज आई टोल्ड यू। डीएनए बाइंड होगा ऑन द सरफेस। अब सरफेस पे बाइंड हो चुका है, ठीक है, अब उसको अंदर लेना है। जैसे वहाँ पे भी हमने स्टडी किया था इन द ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे जो पहला प्रोटीन आएगा वो है पिल क्यू, ओके। पिल क्यू, इसके नाम में ही पाइलस या पिलस जैसा कुछ नेम है इसका। दैट मीन्स कि अटैचमेंट इसका काम है, ठीक है। जैसे अटैचमेंट में भी इसका रोल है, वैसे इसका रोल यहाँ पे है कि इट मेक्स द पोर थ्रू दी आउटर मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लेयर होती है ग्राम निगेटिव में, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब डीएनए को अंदर लेना है तो वो अपने आप तो घुस नहीं जाएगा, वो क्या कर सकते हैं, उसके पास ऐसा कुछ है नहीं कि वो अंदर घुस जाए। तो बैक्टीरिया को खुद को ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चरली उसको अवेलेबल करके देना पड़ेगा जिससे वो अंदर आ सके डीएनए। तो इसके लिए बैक्टीरिया बनाती है, कौन सी बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव, ठीक है। क्या बनाती है, पिल क्यू नाम का पहला प्रोटीन, ठीक है। वो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसको सिक्रिटिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन क्या करेगा, आउटर मेम्ब्रेन पे पोर फॉर्म करेगा, ठीक है, जिससे डीएनए अंदर आने वाला है, ठीक है। नाउ सेकंड प्रोटीन यहाँ पे है कॉम ए प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ वेरी ऑर्थोलॉगस टू दी, मतलब सिमिलर टू दी कॉम ई सी इन द, जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन इनके सेम है, ठीक है, बस प्रोटीन थोड़े से अलग है। यहाँ पे है कॉम ए, यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पे अरेंज है, जैसे वहाँ पे कॉम ई सी थे सेम यहाँ पे, ठीक है। देन वन मोर थिंग, देयर इज द कॉम जी इन द ग्राम पॉजिटिव वन एंड इन द ग्राम नेगेटिव वन वी हैव द पाइल ई, ओके। जैसे पाइल क्यू वैसे पाइल ई। एंड एज वेल एज देर इज़ वन थिंग कि ग्राम पॉजिटिव में रैंडमली डीएनए आ सकता है, लेकिन ग्राम निगेटिव में स्पेसिफिकली होमोलॉगस डीएनए उनको चाहिए होता है कि वही डीएनए जिसका स्ट्रक्चर उनके साथ मिलता जुलता है वही चाहिए, या फिर सेम स्पेसिस का हो तो और भी अच्छा। फॉर एग्जांपल हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो वो डीएनए लेगा हेमोफिलस का ही, दूसरे कौन से बैक्टीरिया का नहीं लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा पाया गया कि वो सुडोमोनास का या सॉरी न्यूमोनिया, ओके, निमोकोकाई का ले सकता है, ठीक है, या फिर हीमोफिलस का ही लेगा। उसको ये रूल है ग्राम नेगेटिव में कि वो लोग अपने ही जैसे स्पेसिस का डीएनए लेते हैं या तो फिर मिलता जुलता, ठीक है। तो नाउ हम इसका डिटेल में देखेंगे कि होता क्या है प्रोसीजर। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दी ग्राम नेगेटिव, ठीक है, पहला चीज़ यहाँ पे जो पहली चीज़ होगी इट विल बी दी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विल बाउंड टू दी सरफेस, ठीक है। ये पहला स्टेप होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा स्टेप होगा क्या कि डीएनए इज पुल्ड थ्रू दी टाइप 2 सिक्रिटिन पोर, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया पिल क्यू, ठीक है। वो क्या करेगा, डीएनए को पुल अप करेगा इनटू दी सेल, ओके। डीएनए बाहर है उसको अंदर खींचने का काम कौन करेगा, पिल क्यू, ठीक है, जो बाहर के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। नाउ डीएनए पुल होने के बाद एक स्ट्रैंड जो है वो लोकेट होगा इनटू दी साइटोप्लाज्म, ओके, बाय कॉम ईसी,
ठीक है। जैसे कॉम ईसी था वहाँ पे इन दी ग्राम पॉजिटिव, यहाँ पे वी हैव द पाइल ए, ठीक है। पाइल ई क्या करेगा, एक स्ट्रैंड को मतलब प्रोटेक्ट करके अंदर लाएगा और एक स्ट्रैंड को वहीं पे न्यूक्लियस जो है वो जो है डिग्रेड कर देगी, ठीक है। ओनली वन स्ट्रैंड विल बी लोकेटेड इनटू दी साइटोप्लाज्म। अभी तक वो मेम्ब्रेन पे था, मेम्ब्रेन पे दोनों स्ट्रैंड उसने अंदर ली थी, बट यहाँ पे इन द मेम्ब्रेन ओनली होगा क्या, न्यूक्लियस एंजाइम आएगी यहीं पे मेम्ब्रेन पे, ठीक है। इन दी मेम्ब्रेन इटसेल्फ एक ही स्ट्रैंड अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ तक दोनों स्ट्रैंड आएंगे। पिल ई जो है वो जो एक स्ट्रैंड है डिग्रेड होने के बाद जो एक स्ट्रैंड बचा है वो उसको अंदर लेके आएगा पिल ई, ठीक है। पिल क्यू का काम क्या है, खींचना अंदर, एंड पिल ई का काम है साइटोप्लाज्म में इसको लेके जाना, ठीक है। नाउ इसके बाद क्या होगा कि ये जो पिल ई है इसने अंदर लिया, ठीक है। कॉम ए जो है वो भी उसको साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर लेगा, ठीक है। पिल ई ने जो है एनर्जी प्रोवाइड की है, ठीक है, डीएनए को टू गेट इनसाइड द मेम्ब्रेन। नाउ कॉम ए जो है वो भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये दोनों जो है यू कैन सी कॉम ए के एक डबल प्रोटीन से यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, दोनों मिलके एक एंट्रेंस के जैसे काम करते हैं, ठीक है। यहाँ से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा सिलेक्टिवली, ठीक है। बाकी डबल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं आ पाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आएगा। इसको आने के लिए जो एनर्जी लगती है वो ये दोनों प्रोवाइड करते हैं, लाइक एटीपीएस कैस्केड फॉर्म करते हैं, ठीक है, ये दोनों। नाउ इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर आने के बाद इस सेल का जो खुद का डीएनए है, ठीक है, जो डबल स्टैंडर्ड है खुद का डीएनए, वो एक स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देगा। अब ये जो नया स्ट्रैंड आया है वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा यूजिंग दी रेक ए, ठीक है। रेक ए की मदद से दूसरा स्ट्रैंड यहाँ पे बाइंड हो जाएगा और एक हेट्रोलॉगस काइंड ऑफ अ डीएनए बन जाएगा इस सेल में, ठीक है, आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सी प्रोसीजर है, बस ये डायग्राम आपको याद रखनी है, कैन सी क्लोजली कि ये डायग्राम आपको याद रखनी है कि कौन से प्रोटीन्स यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला पिल क्यू जिसको सेक्रेटिन कहा जाता है, पिल ई, उसके बाद कॉम ए, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन जो है आर बीन यूज्ड इन द ग्राम नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। इनके नाम आपको याद रखने, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कॉम पिल ई क्या करेगा, अंदर खींचेगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, ठीक है। पिल क्यू क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अंदर खींचेगा, इट इज़ लाइक अ पोर, ओके। उसके बाद पिल ई जो है वो क्या करने वाला है, उसमें से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को ही अंदर लेगा, ठीक है, इनटू दी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में। उसके बाद जो कॉम ए है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, उस डीएनए को लेगा इनटू दिस सेल, इनटू दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और वहाँ पे जो एनर्जी भी लगती वो भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वो जो सिंगल स्टैंड है वो जब साइटोप्लाज्म में आएगा वो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास, एक स्टैंड डिग्रेड हो जाएगा और ये जो नया डीएनए आया है सिंगल स्टैंड वो वहाँ पे जाके बाइंड होके एक हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम फॉर्म करेगा, जो रेप्लिकेट होने के बाद एक सेल में वो हेरिडेट हो जाएगा, एक सेल में नहीं होगा, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, दिस इज़ अबाउट इट, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। एंड इन दिस लेक्चर हमें क्या पता चला कि ग्राम नेगेटिव में प्रोटीन्स जो है थोड़े से अलग है लेकिन फंक्शन सेम ही है। जैसे मैंने आपको बताया था बेसिक प्रोसीजर क्या है कि डीएनए को अंदर लेना, डबल स्टैंडर्ड का सिंगल स्टैंडर्ड करना और सिंगल स्टैंडर्ड को डीएनए में इंटरसेक्ट करना, ठीक है, यही काम है बस। नाउ दिस इज़ अबाउट इट। ऐसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देती हूँ, हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी। हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी में जो स्पेसिफिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, आई वुड शो यू रादर। तो यहाँ पे जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी होता है, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इट इज़ बीन सेड कि वहाँ पे पर्टिकुलरली उनको चाहिए कि एक तो वो सेम टू सेम हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी से जो है डीएनए लेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से मिलते जुलते क्लोजली रिलेटेड लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। तो ऐसा इनका रूल है हेमोफिलस इन्फ्लुएंसी का। एंड एक और चीज़ यहाँ पे है कि उनको चाहिए कि 11 बेस पेयर का सीक्वेंस सिमिलर होना चाहिए उन दोनों में, ठीक है। दैट इज़ ये जो आपको सीक्वेंस दिख रहा है ये सेम होना चाहिए, जिनसे वो डीएनए लेने वाले उनका और मतलब रेसिपिएंट और डोनर का ये जो सीक्वेंस है 11 बेस पेयर का वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
दैट्स अबाउट इट। और वो भी सीक्वेंस जो है इट इज़ बिन रिपीटेड अबाउट 1400 टाइम्स। यू कैन सी कि हेमोफिलियस इन्फ्लुएंस इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। उसको पहली चीज़ तो ये कि वो सेम टाइप के ही बैक्टीरिया से लेगा, और दूसरी चीज़ ये ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। एक 11 बेस पेयर का इनमें सीक्वेंस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। तो आपको याद रखना है अगर एग्जाम्पल, तो यू कैन रिमेंबर हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा इन द ग्राम नेगेटिव और द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। जिसपे एक्चुअली जो डिस्कवरी हुई ट्रांसफॉर्मेशन की वो इन पे ही हुई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। तो अगर एग्जाम में कोई भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम आए तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका बताना है, तो आपको ग्राम पॉजिटिव का बताना है, ठीक है। और एग्जाम में अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का नाम भी आए तो भी आपको प्रोसीजर वही लिखनी है, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। So I hope you understood this lecture. Kindly keep watching the lectures and your feedback will be welcomed. So try to give it. Thank you.